So a very good evening to all my dear friends. Today we have yet another toppers in our topper talk, and we have Vishaka in front of us. She has also given her earlier attempts in this NABARD examination, and she has learned a lot of things. She was giving the interviews, right? She was not getting finally selected, but today we will know that what was the secret behind her success for this secret behind her success for this time. So my heartiest congratulations to Vishaka for making it to the NABARD 2024. That too, when there were very less number of vacancies. Thank you so much, sir. Thank you for your kind introduction. And, sir, I would like to thank you. I have been in touch with you for the last 3 years of my preparation journey. और Hmm. उसमें सर बहुत कुछ सीखने को मिला है और थैंक यू सर आप एक मेंटर की तरह जो है सबको गाइड करते रहिए. Thank you for that gesture. And Vishaka, right, you have done your graduation in agriculture. Then you have been to your master's in one of the reputed college of India, the Forest Research Institute, which everybody knows, right? Yes, After sir. that, you have then gone for the private sector for a few years, right? Job. What motivated her to then switch on to this government sector jobs in your journey as you were working, right? Fine. So what motivated you to right prepare, especially for the NABARD, as you are preparing for this examination only? जी सर सर एक्चुअली व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स इटसेल्फ सो मेरा इंक्लिनेशन एक था कि मैं जो है अपने फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट में जो है पब्लिक सेक्टर ही जाना चाहूँगी। तो उस टाइम में मेरे को लिमिटेड नॉलेज था, तो एक लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ पता थी। आईबीपीएस, एएफओ जो था वो Hmm. टारगेट था और उससे सिमिलर जो अदर एग्ज़ाम्स होते थे। फिर लेटर जो मैंने 2021 में नाबार्ड के बारे में सब मुझे पता था, तो Mm, 2021 में मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द फॉर्म तब फॉर्म फिल mm, किया था। आई वाज़ प्रिपेयरिंग mm, फॉर अदर एग्ज़ाम्स, but then I gave the exam, I cleared the pre-stage, and then I was able to write up to main stage. So I thought the NABARD exam is doable, and from the next year I will be dedicatedly preparing for that. So that was the time that I realized that NABARD मेरा एक caliber का paper है सर. right. So when you started, जब आपने start किया preparation in 2021, right? And now it's around 24. You said that you've given three previous attempts. जी So जी सर. didn't you feel like many times that 21 नहीं हुआ, right? 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ? As most as when leave it, it's not my cup of tea. So what kept you motivated during all these years? सर 2022 से था मेरा जो एक Mm, mm, डेडिकेटेड mm, प्रिपरेशन, तो जून से ही mm, मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। mm, तो उस टाइम तो सर मैं प्री मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच पाई थी, लेकिन जब फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा तो थोड़ा सा एक होता है कि फैक्टर कि बुरा तो लगता है। mm, देन आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद इन 10-15 डेज इटसेल्फ कि नहीं, इस बार नहीं तो जो मेरा प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट टाइम काम आएगा। फिर इन 2023 अटेम्प्ट आई वाज एबल टू गिव द लाइक प्री एंड देन मेंस, लेकिन उसमें एक था कि सर मेरा मेंस ही रुक गया था। So mm, that time I was a little bit demotivated. Ki mm, mm, last year I gave the interview and this year I was mm, not able to qualify the means. So when I mm, got to know about my marks, there I mm, shocked कि थोड़ा सा एक sectional रह गया था, that too in English. mm, So that mm, was a big shocking factor for me, and I was mm, a bit demotivated. But then with the help of my parents, my friends, they told me that mm, okay, you have given so much of attempt, and then I thought mm, myself कि आज मैं दूसरे attempt में अब नहीं बैठूंगी तो मेरा सारा जो mm, है कि वेस्ट चला जाएगा। तो आई mm, गेट माई सेल्फ अप कि 2024 कैसे भी करके सर निकालना है। तो सर mm, इसमें सो जो ये इस वाले अटेम्प्ट में सर मैंने ज्यादा फोकस किया, प्री में, मेंस mm. में और इंटरव्यू में स्पेशली सर। Right. That is a good thing when you improvise with your marks, when you improvise with your strategy, where you're going out blindly, you should not prepare for the examination. चलो पढ़ते जा रहे हैं blindly, right? Without any यस सर. direction. So that is very important that you continue with a clear-cut direction that where you're basically lagging. Now coming on to the phase one of the examination, right? Qualifying, non-qualifying sections are there. So what was your take for the qualifying sections? Quant reasoning in English, how much you used to practice because we cannot leave it at the mercy ki last mein kar lenge, chalo ho हम्म. jayega. So what was your take on this and the merit section, of course, the SI NERT for phase one? सर फॉर द क्वालिफाइंग सेक्शन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में सर हमें सिर्फ जो है बेसिक करना होता है। इंग्लिश में हमारे पास रहता है कि कॉम्प्रिहेंशन आता है और बेसिक ग्रामर आता है, तो वो आप Hmm. मॉक्स देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सेम Hmm. सेम फॉर क्वांट एंड रीजनिंग ऑल्सो। क्वांट में हमें लिमिटेड टॉपिक्स ही करने हैं। क्वांट में हमारे Hmm. पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है और डीआई रहता है, तो इस पे आप Hmm. ज्यादा फोकस करेंगे तो वो क्वालिफाई करने में आसानी रहेगी। नंबर सीरीज एक Hmm. और टॉपिक है सर।
एंड देन सर हम्म रीजनिंग में भी वही लिमिटेड रखा मैंने कि जो पजल्स है उसको मैं फोकस करती थी, सिलॉग्स और आपका इनइक्वालिटीज। तो ये मेरे हम्म फोकस एरियाज रहते थे, तो इसी को मैं प्रैक्टिस करती थी और इसी के मैं मॉक्स लगाती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग के लिए सर एक आप पीडीएफ शेयर करते थे, तो हम्म वही मेरे लिए सफिशिएंट था, और कुछ गूगल में सर्च कर लिया। हम्म एंड कंप्यूटर के लिए भी आपके पास इंटरनेट में बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, तो उसमें हम्म से कुछ आप देख लीजिए, कुछ पीवाईक्यूज आप देख लीजिए, पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं कंप्यूटर्स में, हम्म तो वो था। एंड फॉर जीए सर, जीए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, तो वी हैव टू लिमिट आवर सेल्फ। तो मैं अफेयर्स क्लाउड पढ़ती थी, दैट टू इन लिमिटेड। कुछ चीजें ओमिट कर दी, जैसे ओबिटरीज नहीं आते, जो डेट्स याद राइट नहीं हो पाते, तो वो चीजें मैं छोड़ हम्म देती थी। एंड हम्म अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो क्वालिफाइंग सेक्शन में एआरडी और ईएसआई है, उसका तो सर हम्म इनिशियली स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन रहता था, फेज वन और फेज टू का कंबाइंड। सो जो मैं हम्म पढ़ती थी वो फेज वन के ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी होता था, और फेज टू के हम्म ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी रहता था सर। हम्म Right. So one thing what you have said is very important, right? For quant reasoning, also don't practice blindly. Whatever topics they are asking, right, you have to keep a tap on that. You have to practice on that, यस। and that's a very good thing. That as per the previous year question, हमें practice करते रहना है. Now coming on to the mains of the examination, descriptive again, objective with the paragraph-based questions, the schemes. So what was the take for preparation of these schemes, right? Especially because the students are worried of the schemes. The descriptive paper, if you can elaborate on these two sections, the scheme portion and the descriptive paper. यस सर। सर स्कीम्स के लिए सर, मैं मेरे इनिशियल प्रिपरेशन में क्या करती थी कि मैं कंपाइलेशंस पे ज्यादा फोकस करती Hmm. थी। तो होता ऐसा था कि सर काफी चीजें तो कवर हो जाती है कंपाइलेशन से, Hmm. बट वो डीप इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो पाती थी। तो मैंने Hmm. सर इस अटेम्प्ट में ये फोकस किया कि मैं जो फ्लैगशिप स्कीम्स होंगे स्पेशली, Hmm. उसको मैं डायरेक्टली सोर्स से पढ़ूंगी। तो मेरे Hmm. पास, आप अपना प्रिपरेशन अगर थोड़ा पहले स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास एम्पल Hmm. टाइम रहता है। आप जाइए, पीडीएफ्स मिनिस्ट्री से डाउनलोड कीजिए, और सिर्फ फ्लैगशिप स्कीम्स का आप एक बार देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। सो आई Hmm. थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड फॉर द अदर स्कीम्स दैट आर इन न्यूज, for that PIB is the best source, and apart from PIB we can combine it with the compilations. So Hmm. Hmm. उसमें वो सब कवर हो जाता था स्कीम्स का। एंड सर स्कीम्स के लिए मैं कहूंगी कि आपके टेस्ट सीरीज में भी जो प्रैक्टिस होता था, वो बहुत Hmm. काम आता था, कि एक बार पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस कर लिया, फिर Hmm. रिवाइज कर लिया, तो सर उससे हेल्प मिल जाती थी। Right, एंड right, सर right. रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव, सो Hmm. डिस्क्रिप्टिव में सर मैं फेज वन से पहले ही जो है मेरा प्रैक्टिस रहता था डिस्क्रिप्टिव का। Hmm. सो सर आपने इन 2022 एक Hmm. स्ट्रैटेजी जो है शेयर किया था हमसे डिस्क्रिप्टिव का। तो Hmm. उसमें आप सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स होते थे, तो उस सिलेबस को अकॉर्डिंग आप सारे टॉपिक्स को जो नोट्स कवर Hmm. करा देते थे, Hmm. और Hmm. एक लिखने का पैटर्न बताते थे कि Hmm. इंट्रोडक्शन लिखना है, हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग लिखना है। Hmm. तो Hmm. वही चीज फॉलो करके मैं प्रैक्टिस करती थी। कोई रैंडमली Hmm. एक टॉपिक उठा लिया है Hmm. आपके सिलेबस से, तो उसके बारे में, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न और किसका क्या है, तो वो लिख के प्रैक्टिस कर लेती थी सर। और मेरे खुद के नोट्स थे, तो मैंने एक Hmm. शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, एक एक पेज के Hmm. हट जो, Hmm. तो उससे रिवाइज किया, उसको लिखा और उसी को इम्प्रोवाइज करा। लेट्स से फॉर द विमेन एम्पावरमेंट है, तो स्कीम्स के Hmm. साथ इम्प्रोवाइज करा। Hmm. लेटेस्ट डेटा होता है हमारे पास विमेन रिलेटेड, जो आपके रिपोर्ट्स रहते हैं, पॉपुलेशन रिपोर्ट्स रहते हैं, तो उससे Hmm. आपका जो है एक डिस्क्रिप्टिव में सर, हमारा हमारा फोकस तो मार्क्स खींचना ही रहता है। तो Hmm. आपको मतलब एक तो आपका लिखने का तरीका है, हेडिंग सब Hmm. हेडिंग, और दूसरा आपका ये जो है एडिशनल जो है करंट अफेयर्स और करंट Hmm. रिलेटेड पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो एक्स्ट्रा मार्क्स Hmm. मिलने के मतलब चांसेस रहते हैं। और हर बार Right. सर डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा मेरा ठीक रहता था मार्क्स। Mm-hmm. Descriptive में, if you talk about anything, suggestion, recommendation that you have done in the descriptive to make your structure more presentable in the examination, points, सर bullets, underline, capitalization, anything you have done? जी सर। सर मेरा ये रहता था कि इंट्रोडक्शन लिखना है 2-3 लाइन का, Mm, देन आई वुड गो टू द हेडिंग। लेट्स से mm, इफ दे हैव टॉक्ड अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो आई वुड mm, डिस्क्राइब डेमोग्राफिक डिविडेंड इन 2 लाइन्स। mm, देन आई वुड हाईलाइट द पॉइंट्स कि डेमोग्राफिक mm, डिविडेंड्स के कितने जो है ट्रांजिशंस रहते हैं, mm, 1 2 3, तो उसमें mm, भी हेडिंग सब हेडिंग करके।
जैसे आपने सिखाया सर कि एडवांटेजेस किसी के लिखने हैं, आप हम्म एडवांटेजेस लिख दो बोल्ड में। हम्म उसके बाद आप एक छोटा सा सब हेडिंग डाल दो कि हम्म एडवांटेज एमएसपी का जैसे एडवांटेज है कि हम्म प्राइस गारंटी देता है, फिर डैश करके हम्म एक लाइन लिख दीजिए। फिर उसके right, बाद इनकम सपोर्ट होता है, तो वो सर हम्म एक आपका स्ट्रक्चर देता है 1 2 3 करके, आपके हम्म, आपके लिखने के लिए भी आसान रहेगा, और सर आई थिंक जो चेक करता है उनके लिए भी पढ़ने में right, थोड़ा अच्छा right, लगेगा, right. तो वो मार्क्स। और सर एक और चीज करती थी मैं, एंड में जो रहता था ना वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड हम्म में लिखती ही लिखती थी। right. जी सर। Okay, okay. And एंड coming on सर to the, हाँ, yes, 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 एंड बताइए। सर रिगार्डिंग द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, Yes, that उसमें was मुझे important. लगता है कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म उसमें सब हमारे पास एक रहता है कि हम अपना प्रिपरेशन जो है जैसे रखेंगे वैसे ही हम हम्म मार्क्स फेच कर सकते थे। तो 2023 में जब मेरा हुआ नहीं था, तो हम्म फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में ही मेरा 0.25 से रह गया था। तो हम्म तब मैंने हम्म सोचा कि आई यूज टू प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि हम्म आई डिड नॉट हम्म प्रैक्टिस, आई यूज टू हम्म प्रैक्टिस। देन आई थॉट कि आई शुड नॉट फोकस ऑन द कंटेंट, आई शुड फोकस ऑन माई ग्रामर। सो ये हम्म था कि कंटेंट में एवरेज लिख दो और ग्रामर हम्म पे ज्यादा फोकस करो। सो आई स्टार्टेड राइटिंग एसेज इन द हम्म ग्रामरली, एंड हम्म देन आई यूज टू चेक जो भी मेरे मिस्टेक था। मेरा एक मिस्टेक बुक है, छोटा सा एक नोट पैड बनाया था, right. उसमें मैं लिख देती थी। तो मैंने हम्म एक टाइम के साथ नोटिस किया कि मेरा मिस्टेक जो है सिमिलर रहता था, रिपीटेटिव की जो है। तो उसको आइडेंटिफाई करा, उसको रेक्टिफाई करा सर, तो जाके सर उसमें बहुत हेल्प मिला उसमें उससे। Right, right, right. Now coming on to the phase 3 of the examination, that is interview. And you've already earlier given up the interview the ad. You've seen that how it plays an important role in the finance selection. So what have you tried to improve from the previous years in this year interview, and कैसा रहा इस year आपका interview overall? सर दिस ईयर माय इंटरव्यू वाज वेरी गुड, आई वुड से। मैंने अपना जो जितना प्रिपरेशन था उसको मैं जस्टिस हम्म कर पाई इंटरव्यू में। हम्म एंड मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट जो था इंटरव्यू का, उसमें सर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाई थी, और ना ही मेरा प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू हम्म दिस। सो सर इस साल जो मेरा फोकस था कि अपने जो है बायोडाटा को इंटरेस्टिंग बनाना, तो हम्म सो नाबार्ड से रिलेटेड कुछ हो, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मेरा एक हम्म सर्टिफिकेशन था। हम्म सिमिलरली सर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है मेरा हम्म सर्टिफिकेशन था, और मेरा एक थीसिस था तो वो ट्राइबल डेवलपमेंट पे था। तो वो सब मैंने अपने बायोडाटा में मेंशन किया था, ताकि वो क्वेश्चंस आए मुझ पे। right. क्योंकि सर होता है ऐसा है कि इंटरव्यू में वी डू नॉट नो, इफ वी डू नॉट गिव द हम्म इंफॉर्मेशन, हमें नहीं हम्म पता, कुछ भी पूछ देंगे। तो हम्म वो सब हम्म मैंने मेंशन करके उसको बायोडाटा को एक इंटरेस्टिंग उस पे बनाया था। एंड हम्म मैंने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करी थी। तो इन सब एरिया से हम्म मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, और आई वाज एबल टू जस्टिफाई इट। सो सर okay. Okay, fine. And anything they asked about your previous attempts and were you able to tell, आपने बता पाए थे उन्हें कि आपने पहले भी दिया इंटरव्यू? यस सर, आई वाज एबल टू टेल। लास्ट में सर थे, उन्होंने पूछा था कि यू हैव बीन गिविंग एग्जाम्स एंड नाउ यू आर हम्म नॉट वर्किंग एज वेल, सो व्हाट आर यू डूइंग। सो सर मैंने बता दिया था कि सर मैं एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रही हूँ, और डेडिकेटेडली जो है मेरा नाबार्ड में फोकस है, मैंने पहले भी जो है अटेम्प्ट्स दिए करके। तो हम्म आई थिंक ही वाज सेटिस्फाइड विद दैट, बट एंड देन फॉलो अप क्वेश्चंस थे सर उसमें, लेकिन आई वाज right. एबल टू मेंशन। Right, good. My last question to you, Vishaka, what three suggestions would you give, would you like to give with your prior experience in this examination? सर पहला तो मेरा यही रहेगा कि आप अपने सोर्सेज जो है लिमिटेड रखना, हम्म क्योंकि सर आप जो है लास्ट में रिवाइज करने में जो है प्रॉब्लम आती है। हम्म तो ये 2023 में एक मेरा मिस्टेक रहा है। हम्म 2023 में जो है मैंने एक ही चीज को चार सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करी कि हाँ, हम्म तो वो सर एक आपके फेवर में काम नहीं करता है। हम्म सेकंड सर मैं कहूंगी कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो फेज 1 और फेज 2 का होलिस्टिकली प्रिपरेशन हम्म कीजिए, क्योंकि जो टाइम गैप रहता है फेज 2 के लिए बहुत कम रहता है। हम्म और हमें हम्म उसमें डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश अगर हम सोचे कि कर लेंगे, तो कर तो लेंगे, लेकिन वो जो है अप टू द मार्क नहीं होगा सिलेक्शन मार्क में। हम्म एंड लास्टली सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमें करना है फेज 1 का भी, एंड देन फेज 2 का तो बहुत ज्यादा करना है, डिस्क्रिप्टिव का, right. टाइपिंग स्पीड मेंटेन करने का, एंड इंग्लिश का, हम्म एंड इवन मॉक्स का सर। सर मॉक्स का सर मैंने आपका दिया था इंटरव्यू का मॉक्स हम्म ओनली, एंड देन आई प्रैक्टिस विद माय फ्रेंड दीपांशु। सो हम्म उनके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, तो डेली बेसिस पे 15-20 मिनट करके। तो वो सर हम्म वो बहुत बेनिफिशियल होता है सर। तो right, right, right. प्रैक्टिस इज अ की। I still remember after your mock interviews, I was उस दिन भी मैंने बताया था, फिर बीच में आपको कॉल करके भी मैंने बोला था कि यस सर। this time you have to make it right since you're giving from I don't want less marks, तो आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए।
And that is a good thing you have done, as you were saying. That's why the result is right. यस सर सर एक्चुअली सर आपने एक सजेशन दिया था कि आपने बोला था कि Mm, अपने आप को रिकॉर्ड करो और सुनो और उसको mm, बार बार mm. इम्प्रूव करने का। तो सर आई थिंक मैंने अपना 300-400 वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड करे Oh, होंगे और सुने होंगे बार बार, तो फिर आई mm, थिंक उससे थोड़ा इम्प्रूव होने में जो हेल्प मिला मुझे। right. So that is really right. This is only called hard work, which I यस want to emphasize again. 300, 400 recording is not a small thing. So you have made every effort, right, to make it यस सर perfect, your interview. And ये मैं all fresh aspirants को बोलना चाहूँगा, don't take it granted. Once you have qualified phase two, आप practice कीजिए, right? Then जी only सर the जी। result will come. Right, right, right. So with this, I will like to wish all, right, best of luck for all your future endeavors, Vishaka. Thank you for giving us the time. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर, थैंक Thank you, Vishaka.